Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 10th science in physics portion we are going to continue our chapter 12 electricity. The topics that we are going to cover are 12.4 Ohm's law, 12.5 factors on which the resistance of conductor depends, and 12.6 resistance of the system of resistors, which has two subtopics. First is 12.6.1 resistors in series and second is 12.6.2 resistors in parallel. So let us start with our first topic, which is Ohm's law. In order to understand Ohm's law, we will see our activity 12.1, which is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it? Let us explore with an activity. In our activity, we have to set up a circuit that is shown in figure 12.2, consisting of nichrome wire XY of length say 0.5 meter, an ammeter, a voltmeter, and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy nickel, chromium, manganese, and iron metals. Means nichrome is made up of using these materials. First, use only one cell as the source in the circuit. Means we have taken 4 cells, from that we have to use only one cell first. Note the reading in the ammeter of the current for current and reading of the voltmeter V for potential difference across the nichrome wire XY in the circuit. Means we'll use our ammeter to note the current after first try, and we'll read the potential difference using the voltmeter. Tabulate them in the table given. Now we will see the table that is given after reading the reading of ammeter and voltmeter. Next, connect two cells in the circuit and note the respective readings of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire. Here you have given a table. In that there are total 4 columns. In first column it is given number of cells that are used in circuit. Second column is to note the value of current in ampere by reading the ammeter. Third is to note the value of potential difference across the nichrome wire by using voltmeter. And last one is volt divided by ampere, V by I value. So we have to repeat the step that is mentioned. The first point that is written here, we have to repeat that step using 3 cells and then 4 cells in the circuit separately. Then we have to calculate the ratio of V to I for each pair of potential difference V and current I, and also plot a graph between V and I and observe the nature of the graph. In the activity that we have seen, activity 12.1, you will find that approximately the same value for V by I is obtained in each cases. Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus, V by I is a constant ratio. In 1827, a German physicist Georg Siemens Ohm found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and potential difference across its terminals. The potential difference V across the end of given metallic wire is in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called the Ohm's law. In other words, V is proportional to I, or say V divided by I is equals to constant is equals to R, or V is equals to IR. The V proportional to I is our equation 12.4 and V is equals to I into R is our equation 12.5. In equation 12.4, R is constant for given metallic wire at a given temperature and it is called its resistance. मतलब जो 12.4 इक्वेशन है हमारा, उसमें R जो है वो कांस्टेंट है मेटालिक वायर के लिए at a particular given temperature, and that R is known as resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charges through it, and its SI unit is ohm, represented by Greek letter ohm. This is here the Greek letter mentioned is symbol for ohm, and according to Ohm's law, if potential difference across two ends of a conductor is 1 V and current through it is 1 A, then the resistance of the conductor is 1 W, that is 1 ohm is equals to 1 watt by 1 ampere. मतलब कि if
the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and the current that is flowing through that conductor is 1 ampere, then the resistance should be 1 W. That means that 1 ohm is equals to 1 volt by 1 ampere, or we can say R is equals to V by I. Okay, so this is our equation 12.6 for Ohm's law. Now also equation 12.5 we get from equation 12.5 we get, अभी यहाँ पे जो V की वैल्यू है V इज इक्वल्स टू आई आर है. सो अगर हम R को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में. सो हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर. दैट इज अवर इक्वेशन 12.7. नाउ it is obvious that the equation number 12.27 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. मतलब 12.7 इक्वेशन से हमें पता लग सकता है कि जो कि करंट है रजिस्टर के अंदर का वो उसके रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड इफ रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ. मतलब अब रेजिस्टेंस डबल करोगे तो करंट हाफ हो जाएगा. अब उससे क्या होगा कि in many practical cases it is necessary to increase and decrease the current in electric circuit. A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. ठीक है. Now in an electric circuit a device is called rheostat and it is often used to change resistance in the circuit. अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है कंडक्टर के अंदर का एक एक्टिविटी के बेस पे. अभी जो एक्टिविटी हम देखने वाले हैं वो है हमारी एक्टिविटी 12.2. उसमें क्या है कि हमें एक नाइक्रोन वायर लेना है, एक टॉर्च बल्ब लेना है और एक 10 वाट का बल्ब एंड एन एमीटर लेना है. एमीटर 0 to 5 एम्पियर की रेंज का. ठीक है. अब एक प्लग की एंड थोड़े से कनेक्टिंग वायर्स लेने हैं और एक सर्किट सेटअप करना है बाय कनेक्टिंग 4 ट्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट एंड they are connected in series with the emitter leaving a gap xy in the circuit as shown in figure. Okay, अभी सर्किट को हमें कंप्लीट कैसे करना है कि नाइक्रोन वायर को कनेक्ट करना है xy वाली जो गैप है उसमें एंड की को प्लग करना है एंड हमें एमीटर की रीडिंग नोट डाउन करनी है. अभी टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग. मतलब कि प्लग में से की निकालना है. और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग करंट थ्रू द सर्किट. मतलब कि जब आप सर्किट में से करंट मेजर करो तब आपको प्लग की निकाल देनी है. सो फिर क्या है कि हमारा जो नाइक्रोन का वायर है उसको टॉर्च बल्ब से रिप्लेस कर देना है. मतलब कि नाइक्रोन वायर की जगह अब हमें टॉर्च बल्ब लगाना है सर्किट में एंड वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू इट बाय मेजरिंग रीडिंग ऑफ एमीटर. मतलब अब जो करंट की रीडिंग एमीटर पे आएगी वो हमें फाइंड करनी है. अभी यही सेम स्टेप हमें रिपीट करना है. जो टॉर्च बल्ब है उसके बदले हमें 10 वॉट का जो बल्ब हमने लिया था वो इस XY गैप में लगाना है और फिर से रीडिंग नोट करनी है. अब क्वेश्चन क्या है कि आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द XY गैप. व्हाट डू द अबव ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट. मतलब कि डिफरेंट जो हमने चीजें ली, पहले नाइक्रोन वायर लिया, फिर टॉर्च बल्ब लिया और फिर एक 10 वॉट का बल्ब लिया, तो उस सभी में जो रीडिंग हमें करंट की मिली वो सेम थी या डिफरेंट थी. एंड ये जो ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्या इंडिकेट करता है. तो यू में repeat this activity by keeping the any material component in the gap and observe the ammeter reading in each case and analyze the observation. In this activity we observe that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for flow of electric current with other resist while the other resists the flow. मतलब कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो हमें रीडिंग्स मिले हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए वो डिफरेंट है. अब ये डिफर क्यों करती है? क्योंकि कई कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इजी पाथ देते हैं और कई कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं वो उस फ्लो को रेजिस्ट करते हैं. इसीलिए हमें डिफरेंट करंट की रीडिंग्स मिली है. एंड वी ऑल्सो नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट. द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव करने के लिए अलाउड नहीं होते हैं, एंड दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव, एंड थस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द रेजिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिस्ट्रेन किया जाता है एटम्स के अट्रैक्शंस के द्वारा जब वो मोशन में होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन का जो ये मोशन होता है कंडक्टर के अंदर वो रेजिस्टेंस के द्वारा रिट्रेडेड किया जाता है, एंड अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। मतलब कि जो कंपोनेंट हमें लो रेजिस्टेंस देगा उसे हम गुड कंडक्टर कहेंगे, एंड अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस इन अ पुअर कंडक्टर। मतलब कि पुअर कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस ऑफर होगा, और कंडक्टर के अंदर जो अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टर कहेंगे। ठीक है, अभी एक इंसुलेटर होता है सेम साइज का, वो आपको हायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब इंसुलेटर जो है उसमें रेजिस्टेंस की कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। ओके, सो ये तो था हमारा टॉपिक। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा नया टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टॉपिक नंबर 12.5, विच इज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए भी हमें एक एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, एक्टिविटी 12.3, जिसमें हमें क्या करना है कि कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ सेल, एन एमीटर, अ नाइक्रोन वायर ऑफ लेंथ L से मार्क्ड 1 एंड अ प्लग की एज शोन इन फिगर 12.5। 12.5 में जो फिगर ड्रॉ दी गई है उसमें हमने एमीटर लिया है, एक सेल लिया है, एक नाइक्रोन वायर लिया है L लेंथ का, और एक प्लग की ली है, और उस सब को जोड़ के एक सर्किट बनाई है जो 12.5 में दिखाई गई है। अभी की को प्लग करना है और करंट एमीटर में जो करंट की रीडिंग है वो नोट करनी है। फिर नाइक्रोन वायर को रिप्लेस करना है एक दूसरे नाइक्रोन वायर से उसी ही थिकनेस के साथ, बट जो नया नाइक्रोन वायर हम लगाएंगे वो पहले वाले से लेंथ में डबल होना चाहिए। ठीक है, और उसे हम मार्क करेंगे 2 इन फिगर 12.5। ठीक है, अभी इसके बाद हमें एमीटर की रीडिंग नोट करनी है दूसरे वायर को यूज करके। अभी हमें जो दूसरा वायर था जो डबल लेंथ वाला था 2L वाला, उसे हमें फिर से एक नए नाइक्रोन वायर से रिप्लेस करना है, लेकिन वो जो नया नाइक्रोन वायर है वो दूसरे वाले से थिक होना चाहिए और उसकी लेंथ उसकी जितनी ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरे और तीसरे वायर की लेंथ सेम होगी, लेकिन तो तीसरा वायर होगा वो दूसरे वायर से थोड़ा मोटा होगा, उसे हम मार्क करेंगे एज 3। अब यह थिकर वायर हैज लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू द सर्किट। नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नाइक्रोन वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर एंड मार्क इट एज नंबर 4। ठीक है, and let the wire be of same length and same area of cross section as of the first नाइक्रोन वायर। मतलब ये जो कॉपर वायर होना चाहिए वो लेंथ और थिकनेस में हमारे पहले नाइक्रोन वायर जितना ही होना चाहिए, और उसे हम फिर से वन नंबर से मार्क करेंगे, और फिर हमें करंट की वैल्यू नोट करनी है। और अब हमें नोटिस करना है करंट differences of currents in all the cases, and does the current depend on length of the conductor, does the current depend on area of the cross section of the wire। these are the few questions that arises in our mind। तो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसमें से हमें ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें से हमने क्या ऑब्जर्व किया दैट एमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज डबल। मतलब कि वायर की लेंथ डबल करोगे तो एमीटर की रीडिंग होगी वो पहले से हाफ कम हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज्ड व्हेन थिकर वायर इज यूज्ड ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इन द सर्किट। अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मतलब जो कॉपर वायर लिया था हमने, पहले हमने लिया था नाइक्रोन वायर, अभी हम लेते हैं कॉपर वायर, तो उसमें एमीटर की रीडिंग ऑब्जर्व की गई है कि जो नाइक्रोन वायर की रीडिंग्स होती थी उससे अलग थी कॉपर वायर की रीडिंग। ठीक है, अभी इक्वेशन 12.5 और 7 जो हमने प्रीवियसली डिराइव किए थे उस पर जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया एंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट हैज शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई द बेस ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट्स। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ है वो हमारा इक्वेशन 12.8 है, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया।
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आर प्रोपोर्शनल 1/a, वो है हमारा इक्वेशन 12.9। अभी 12.8 और 12.9 को कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, एल मल्टीप्लाई बाई 1 एल होता है, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और वी कैन से आर इज इक्वल्स टू पी एल बाई ए। यहाँ पे जो पी है उससे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इट इज ऑल्सो, मतलब ये जो पी है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो है हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हमारे ऐसा यूनिट की जो रेजिस्टिविटी है वो है ओहम मीटर, सॉरी ऐसा यूनिट, हाँ रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो है ओहम मीटर, and it is a characteristic property of material. The metals and alloy have very low resistivity in range 10 raised to -8 ohm meter to 10 raised to -6 ohm meter, and they are good conductors of electricity. Insulators like rubber, glass have resistivity of order of 10 raised to 12 to 10 raised to 17 ohm meter. Both resistance and resistivity of material vary with the temperature. अभी यहाँ पे टेबल 12.2 रिवील करता है रेजिस्टिविटीज ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट constituent metals. Okay, so alloy do not oxidize or burn readily at high temperature. For this reason they are commonly used in electrical heating devices like electric iron and toasters. ये जो alloy होते हैं ना वो जल्दी बर्न हीट नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए उसे हीट मटेरियल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines. Now we'll see an example, example 12.3, according to which how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if resistance of the bulb filament is 1200 ohm, and b how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if resistance of heater coil is 100 meter. So looking to the solution, पहला जो solution है कि हमें फाइंड करना है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकता है कि 220 वोल्ट के सोर्स में से अगर उसका रेजिस्टेंस का बल्ब फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 ओम हो. सो वी आर गिवन V is equals to 220V and R is equals to 1200. From the equation we can say I is equals to V by R, which is equals to 220 by 1200. That will give us 0.18 एम्पियर ऑफ करंट. अभी दूसरे केस में एक इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल है, वो कितना करंट ड्रॉ कर सकती है 220 वोल्ट सोर्स में से जब उसका रेजिस्टेंस 100 ओहम हो. तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई बाय आर क्या होगा, आर हमारा 100 ओहम है. सो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओहम विल बी इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर. यहाँ पे आप डिफरेंस करो करंट जो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर के बीच के जो डिफरेंस है वो नोट करो, अलग अलग होगा, ठीक है. मतलब वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमें मिलेगा. सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर अवर एग्जांपल 12.3. नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल. Our next example is example 12.4, according to which the potential difference between terminal of electric heater is 6 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if potential difference is increased to 120 V? So एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 V है जब वो 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है. अगर वही रेजिस्टेंस 120 V होता है तो वो कितने अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर पाता. सो लेट अस लुक एट आवर सॉल्यूशन. वी आर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 60 V, करंट I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. R is equals to V by I, which is equals to 60 by 4, which is equals to 15 ohm. Okay, सो 15 ओम हमें रेजिस्टेंस मिला. अब हम 120 V वाले केस में कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट मिलता है, ठीक है. तो करंट की फॉर्मूला है V बाई आर विच इज इक्वल्स टू 120 बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर. सो द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर when the potential difference is increased to 120 volt. So this is our solution for our example 12.4. Now we'll move to our next example. Our next example is example 12.5, according to which resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degrees Celsius. If diameter of the wire is 0.3 millimeter,
What will be resistivity of metal at that temperature? Using table 12.2 to predict the material of the wire. मतलब हमें एक मेटल वायर दी गई है 1 मीटर लेंथ की, जिसका रेजिस्टेंस है 26 ओहम 26 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे. अगर उसका डायामीटर 0.3 मिलीमीटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी मतलब उस मेटल की रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्या होगी. और टेबल 12.2 के बेस पे हमें प्रिडिक्ट करना है कि जो आंसर जो हमें मटेरियल मिलता है वो कौन सा मटेरियल है. सो लुकिंग टुवर्ड सॉल्यूशन वी हैव गिवन रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर विच इज इक्वल्स टू 26 ओहम and the diameter d is equals to 0.3 mm which is equals to 3 into 10 raised to minus 4 meter and the length of wire is 1 meter. Therefore, from equation 12.10 the resistivity of given metallic wire is P is equals to R resistance into A cross sectional area divided by L which is equals to R into potential difference square divided by 4 into L. Okay, so इसके बेस पे हमें क्या मिलेगा, इन सभी जो 4 पाई डी स्क्वायर है, पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर नहीं है, पाई डी स्क्वायर है. सो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है. तो इसमें जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या मिलेगी 1.84 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6. मतलब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आर हम पुट करेंगे एज 26, पाई की वैल्यू पुट करेंगे डायमीटर स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 1. सो उन सब इक्वेशन को सॉल्व करके हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिलेगी 1.84 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 वाट मीटर. ठीक है, अभी रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट 20 डिग्री सेल्सियस हमें मिली ये 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 ओहम मीटर. ओके, नॉट वाट मीटर, इट्स ओहम मीटर. सो टेबल 12.2 के बेस पे जो रेजिस्टिविटी मिली है वो रेजिस्टिविटी है मैंगनीज की. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 12.5. Our next example is example 12.6 according to which a wire of given material has length L. मतलब एक L लेंथ का वायर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इस वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओहम. अगर हम इसी वायर की लेंथ हाफ कर देते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर देते हैं तब हमें कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, ये हमें फाइंड करना है. तो फॉर द फर्स्ट वायर वी हैव R1 इज इक्वल्स टू resistivity into L by A which is equals to 4 ohm. Now for second wire resistance is equals to resistivity into L by 2 divided by 2A which is equals to 1/4 of resistivity of L into A. अब जो रेजिस्टिविटी ऑफ L इंटू ए है वो तो R1 की वैल्यू है. सो वहाँ हम R1 लिखेंगे. सो हमें क्या मिलेगा, R2 इज इक्वल्स टू 1/4 R1. अभी R1 की वैल्यू 4 ओहम है तो वहाँ जब हम 4 लिखेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में होगा और एक डिवीजन में. तो हमें R2 की वैल्यू मिलेगी 1 ओहम. सो रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर विल बी 1 ओहम. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल नंबर 12.6. The next topic that we are going to discuss is topic number 12.6 resistance of a system of resistors. So basically इस particular topic में है क्या कि in various electrical gadgets we use resistors in various combination. ठीक है, we therefore intend to use how Ohm's law can be applied to combination of resistors. There are two methods of resistors together. फिगर 12.6 जो है वो हमें दिखा रही है एक सर्किट जिसमें हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं R1, R2 एंड R3 और उसके एक एंड को दूसरे रेजिस्टर के एंड के साथ ज्वाइन किया है. यहाँ हम कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. उसी वे में दूसरी फिगर 12.7 में हमने क्या किया है, 12.6 में हमने एक रेजिस्टर का जो एंड था उसे दूसरे रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइंट किया था. ठीक है, लेकिन 12.7 वाली फिगर में हमने क्या किया है कि ये जो 3 रेजिस्टर्स है ना तो उसके पहले और आखिरी दोनों एंड को दूसरे रेजिस्टर के पहले और आखिरी एंड से कनेक्टेड किया है. उसी वे में हमने तीसरे रेजिस्टर को भी वैसे ही कनेक्ट किया हुआ है. तो इस कनेक्शन को हम कहेंगे that resistors are connected in parallel format. अभी हम देखेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज. इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 12.4. उसमें हमें क्या करना है कि 3 रेजिस्टर को सीरीज फॉर्मेट में ज्वाइन करना है और उसको एक बैटरी से और उसको बैटरी एमीटर और एक प्लग की से कनेक्ट करना है जैसे आपको फिगर 12.6 में दिखाया गया है उसी तरह. ठीक है, अब
यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, मतलब कि रजिस्टर की वैल्यू आप 1 ओम 2 ओम 3 ओम कैसी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि एक बैटरी लेनी है 6 वोल्ट की इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अभी हमें की को प्लग करना है और एमीटर की रीडिंग नोट करनी है। चेंज द पोजिशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स, मतलब कि हमें रजिस्टर्स के बीच में एमीटर जो है उसकी पोजीशन कहीं भी चेंज कर देनी है और फिर से जब जब चेंज करेंगे तब तब हमें एमीटर का रीडिंग नोट करना है। डिड यू फाइंड द चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर? एक्टिविटी 12.4 में हमें एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एमीटर की जो रीडिंग है उसकी पोजीशन चेंज करने के साथ साथ बदलती है या नहीं। तो उसमें उसका आंसर ये है कि एमीटर की जो रीडिंग है वो नहीं बदलेगी। इसका मतलब कि अगर जो रजिस्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड हो गए और वहाँ पे आप एमीटर की जो पोजीशन होगी वो चेंज करोगे तो उससे उसकी करंट की रीडिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि सभी रजिस्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट होता है। अभी हम देखेंगे एक दूसरी एक्टिविटी, एक्टिविटी 12.5, जिसमें क्या है कि एक्टिविटी 12.4 में जहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्ट किए थे ना रजिस्टर्स, तो उसी दो रजिस्टर्स के एक एक रजिस्टर्स के एंड पे हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है एक्स वाई एंड्स पे सीरीज में ही। मतलब पर रजिस्टर्स एक एक वोल्ट मीटर होना चाहिए, जैसे फिगर 12.8 में आपको दिखाया गया है उसी तरह, ठीक है। अब एक की को प्लग करना है सर्किट में और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करनी है। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर हमें कनेक्ट किए हैं तो वो सभी रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकाल के देंगे, उसे हम वी डिनोट करेंगे। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कंपेयर टू एंड कंपेयर द टू वैल्यूज, मतलब अब इसके बाद हमें जो बैटरी के टर्मिनल्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस नोट करना है, मेजर करना है और फिर रजिस्टर्स और ये बैटरी दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला उसको कंपेयर करना है। फिर हमें प्लग की निकाल देनी है और वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट कर देना है। और अभी हमें इंसर्ट करना है वोल्ट मीटर अक्रॉस एक्सपी पॉइंट ऑफ फर्स्ट रजिस्टर्स, मतलब अभी हमें रजिस्टर्स के एंड पे, मतलब रजिस्टर्स के एंड पे वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। पहले हमने एक्स वाई पॉइंट पे रजिस्टर लगाया था, अब हमें एक्स पी पॉइंट पे रजिस्टर लगाना है, ठीक है। पहले जो हम बात कर रहे थे वो हमारी जो 12.4 में जो थी ना एग्जाम्पल, 12.4 में जो फिगर की एग्जाम्पल ली थी ना उसके हिसाब से वोल्ट मीटर लगाना है। अब हमें पर जो रजिस्टर्स है उसके दोनों एंड पे वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। सो उसके ऐसे वोल्ट मीटर लगाने से क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो हमने रजिस्टर लगाया था वो था तीनों रजिस्टर्स के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में, मतलब कि एक ही वोल्ट मीटर था एक्स से वाई पॉइंट पे। लेकिन उसके बाद हमने थोड़ी एक्सटेंड करके सर्किट कैसी बना दी कि पर रजिस्टर्स के एंड पॉइंट में वोल्ट मीटर लगा दिए, तो उससे उसके बाद हमें एक प्लग की मतलब की को प्लग किया और पोटेंशियल डिफरेंस नोट किया पहले रजिस्टर का, उसे हम V1 डिनोट करेंगे। सिमिलरली हम पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करेंगे नोट करेंगे बाकी दो रजिस्टर का और उसको V2 एंड V3 डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2 एंड V3। You will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential difference V1 V2 एंड V3, मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 का सम होगा, that is total potential difference across the combination of resistors in series equal to the sum of potential difference across the individual resistors। मतलब in short क्या है कि V will be equal to V1 plus V2 plus V3, इसे हम इक्वेशन 12.11 डिनोट करेंगे। अब जो फिगर 12.8 में जो इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाई गई है ना, तो उसको उसमें I जो है उसे हम करंट थ्रू द सर्किट डिनोट करेंगे एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो I. It is possible to replace the three resistors joined in series by equivalent single resistors of resistance R such that potential difference V across it and current I through the circuit remains the same। अभी इसके ऊपर जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें वही पहले पिछली फॉर्मूला मिलेगी, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, जो है हमारी इक्वेशन 12.12।
और जब हम इन्हीं डिफरेंट रेजिस्टर्स पे जब ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें V1 इज इक्वल टू IR1 मिलेगा, V2 इज इक्वल टू IR2 मिलेगा और V3 इज इक्वल टू IR3 मिलेगा। इन तीनों इक्वेशन को हम नेम कर देंगे 12.13 A, 12.13 B एंड 12.13 C। अब इक्वेशन 12.11 से हमें क्या मिलेगा, IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 और वी कैन से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वी कैन कंक्लूड दैट RS इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3 जो है हमारा इक्वेशन 12.14। We concluded that when several resistors are joined in series, the resistance of combination RS is equal to the sum of all individual resistances. R1, R2 and R3 are is thus greater than an individual resistance. Now we'll see an example 12.7, according to which an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery is shown in figure 12.9. We have to calculate A, the total resistance of the circuit, and B, the current through the circuit, and C, the potential difference across the electric lamp and the conductor. Looking towards our solution, हमें इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस जो है वो हम R1 डिनोट करेंगे, वो है 20 ओम मीटर, और जो कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज है उसका रेजिस्टेंस हम डिनोट करेंगे R2 विच इज 4 ओम। ठीक है, अभी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, सो RS हमें क्या मिलेगा, 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। अभी ओहम्स लॉ के बेस पे हमें करंट की वैल्यू मिलेगी I इज इक्वल टू V बाई RS विच इज इक्वल टू 6/24 दैट इज 0.25 एम्पियर। अब हम इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर दोनों पर सेपरेटली ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक लैंप का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम V1 डिनोट करेंगे और वो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 20 इंटू 0.25 विच इज इक्वल टू 5V। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला के बेस पे हमने ये वैल्यूज लिखी है और कैलकुलेट किया है। अब जो कंडक्टर है उसका हम V2 डिनोट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और वो हमें मिलेगा 4 इंटू 0.20 एम्पियर विच इज 1 volt. If we suppose that we like to replace the series combination of electric lamp and conductor by a single and equivalent resistors, then its resistance must be such that the potential difference of 6 volt across the battery terminals causes the 0.25 ampere of current in the circuit. The resistance R of this equivalent resistance will be given by V divided R is equals to V by I which is 6 volt by 0.25 ampere which is equals to 24 ohm. Thus, in total resistance of series circuit it is equal to the sum of two resistances. मतलब इस पूरे के पूरे बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट का वो हमारे दो रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 12.7. Now we'll see the topic resistors in parallel, and in order to understand that we'll do an activity. According to activity, make a parallel combination XY of 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively. Then connect it with a battery, a plug key and an ammeter as shown in the figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of the resistors at point X to Y. Now plug the key and note ammeter reading and let current be I. Also take the voltmeter reading. It gives potential difference V across the whole combination. The potential difference across each resistor is also V. This can be checked by connecting the voltmeter in individually with each resistors as shown in figure 12.11. Now take out the plug from the key, remove the ammeter and voltmeter from the circuit and insert the ammeter in series with the resistor R1 as shown in figure 12.11 and note the ammeter reading of current I1. Similarly, measure the current through R2 and R3 and let the current be I2 and I3 respectively. What is the relationship between I1, I2 and I3? It is observed that the total current is equal to the sum of separate currents through each branch of combination. मतलब I is equals to I1 plus I2 plus I3 मिलेगा. That is our equation 12.15. ठीक है. Now let RP be equivalent resistance of parallel combination of the resistors, and by applying Ohm's law to the parallel combination of resistors we'll get I is equals to V divided by RP which is our equation 12.6. जो I is equals to V by RP था वो था हमारा equation 12.16. अब
On applying Ohm's law to each resistor, we'll have I1 is equals to V by R1, I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3, which is our equation 12.17. अभी इक्वेशन 12.15 एंड 12.17 के बेस पे हमारे पास क्या मिलते हैं कि V by RP is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 और 1 by RP is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, which is our equation 12.18. ठीक है. Thus we may conclude that reciprocal of equivalent resistances group resistances joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. Now we'll see an example 12.8, according to which in circuit diagram given in figure 12.10, suppose the resistors R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 3 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt. We have to calculate three things. First, हर एक रजिस्टर में कितना करंट होगा वो, और दूसरा पूरी सर्किट का टोटल करंट, और तीसरा पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. So let's look at our solution. So according to our solution, we have R1 is equals to 5 ohm, R2 is equals to 10 ohm and R3 is equals to 30 ohm. Potential difference जो है पूरी बैटरी का वो V is equals to 12V हमें दिया गया है. This is also the potential difference across each of the individual resistors. Therefore, to calculate current in each resistors, will apply Ohm's law. मतलब ये जो 12 वोल्ट है रेजिस्टेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, वो हर एक रेजिस्टर का भी है. ठीक है. सो Ohm's law अप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी? करंट, द करंट I1 थ्रू R1 इज V by R1. So I1 will be equal to 12 by 5 विच इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर. अभी दूसरे रजिस्टर्स के लिए दूसरा जो रजिस्टर है उसके लिए I2 क्या होगा? V by R2 विच इज 12 by 10 विच इज 1.2 एम्पियर. और तीसरे रजिस्टर के लिए हमारा I3 क्या होगा? V by R3 विच इज 12 by 30 विच इज 0.4 एम्पियर. सो ईच रजिस्टर के हमें जो करंट मिले हैं, तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें तीनों रजिस्टर्स के करंट को ऐड करना पड़ेगा. So we'll have total current in circuit as I is equals to I1 plus I2 plus I3, which is 2.4 plus 1.2 plus 0.4 ampere, which will give us answer as 4 ampere total current. अभी total resistance क्या है? वो equation 12.18 के बेस पे दिया गया था. 1 by RP is equals to 1 by R1 plus R2, 1 by R2 plus 1 by R3, मतलब 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30, which will give us answer as 1 by 3. मतलब कि ये तो 1 by 3 हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है. 1 by RP की वैल्यू है 1 by 3. RP की वैल्यू क्या होगी? 3 ओम. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 12.8. Now we'll see an example 12.9, according to which if in figure 12.12 R1 is equals to 10 ohm, R2 is equals to 40 ohm and R3 is equals to 30 ohm, R4 is equals to 20 ohm and R5 is equals to 60 ohm, and a 12V battery is connected to the arrangement. We have to calculate two things. First is the total resistance in the circuit and second is the total current flowing in the circuit. So let's look at our solution. So looking to our solution, suppose we replace the parallel resistors R1 and R2 by equivalent resistors of R dash. Similarly, we replace R3, R4 and R5 by equivalent single resistor of resistance R double dash. Then using equation 12.8, we'll have 1 by R dash is equals to 1 by 10 plus 1 by 40 is equals to 5 by 40, and R dash will be equal to 8 ohm. Okay. Then similarly, 1 by R double dash will be equal to 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60, which will give us 6 by 60. So हमें R double dash की वैल्यू क्या मिलती? 10 ohm मिलती. 1 by R double dash 6 by 60 है, तो R क्या होगा? 60 by 6 होगा. So उस बेस पे हमें R double dash की 10 ohm वैल्यू मिलेगी. Similarly 1 by R dash में भी यही है. 1 by R dash हमें 5 by 40 मिला, तो हम R की वैल्यू में अपसाइड डाउन फ्लिप कर देंगे तो 40 by 5 मिलेगा. तो उस बेस पे हमें 8 ohm मिला. ठीक है. Thus the total resistance will be R equals to R dash plus R double dash, which is equals to 10 plus 8 18 ohm. अभी टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ओम्स लॉ अप्लाई करने पड़ेगा. सो हमें क्या मिलेगा? I is equals to V by R is equals to 12 by 18, which will give us total current as 0.67 ampere. So this is our solution for example 12.19. We have seen that in series circuit the current is constant throughout the electric circuit. Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly.
Another major disadvantage of series circuit is that when one component fails, the whole circuit is broken down and none of the component works. If you have used the fairy lights to decorate building on festivals, on marriage celebration, etc., you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. On the other hand, a parallel circuit divides the current through electrical gadgets and the total resistance in parallel circuit is decreased as per equation 12.18, and this is helpful particularly when each gadget has different resistances and requires different current to operate properly. So we discussed the topics 12.4, 12.5 and 12.6 in this video. The further remaining topics we will discuss in next video. That is it. Thank you.